Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and we are going to do another part of this 120 question series. सैम्पल पेपर सॉल्व करें हमें JSSC PGT इंग्लिश लिटरेचर के लिए जितना आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियोस को रिपीट करेंगे उतनी आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी एंड always keep a pen and paper in your hand whether you are attending a live session or whether you are watching a video. आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए. सब पॉइंट्स अपने हिसाब से नोट करिए और उस सेशन के बाद एक बार अपने पॉइंट्स को देख लीजिए. आपका पूरा कंसेप्ट बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा. Question 61. An iambic pentameter line contains how many feet? पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं. देयर आर ये जो प्रोसिडी है दिस इज वेरी डीप. बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे राइम और रिदम होते हैं, सबको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है. आयाम्बिक मीटर, ईच फुट हैज 2 syllables of which first is unaccented यानी कि unstressed and the second one is accented that is stressed. So if there are 5 feet or total 10 syllables in a line, it would be known as pentameter. How many lines does a sonnet consist of? काफी simple question है. 14 lines हैं. I think everyone who is interested in literature knows about it. 61 से 90 तक टोटल 30 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे आज. तो मुझे आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके 30 में से ठीक हुए, कितने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते थे. क्वेश्चन 63. The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called parody. Parody is imitation of words, style, attitude, tone and ideas of an author or a person or maybe any even place also. हम किसी place के significance को mock करते हैं तो that will also be called parody. Lyric. A lyric is, correct answer, option C. A short poem in which the poet expresses his intense personal feeling. Best lyric poetries जो होती हैं, most of the time they do depict some kind of mood or emotion. The best lyrics are emotional in tone. Question 65. A ballad. बैलेड इज अ पोइट्री जो कि लॉन्ग पोइट्री होती है और एक स्टोरी, एक कहानी हमें बताती है. जैसे कि हिंदी में हम कहें लोक कथा. लोक कथा क्या करती है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की एक स्टोरी बताती है इन वर्स फॉर्म. तो वर्स फॉर्म में होती है पोइट्री ऑफ कोर्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं एंड इट इज ट्रांसमिटेड ऑरली एंड टेल्स अ स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. They talk of memorials to him in statues of bronze or marble or pillars and thus they mock him and belie his message. Belie का मतलब झुठलाना. What does the writer say? Correct answer is option B. The dead person's message is important. हम लोग मेमोरियल्स बना देते हैं मरे हुए लोगों के लिए, ग्रेट लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद उनको भूल जाते हैं. लेकिन वो लोग जो भी मैसेज हमें देकर जाते हैं वो मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नो वन इज सपोज टू मॉक अ डिसीज्ड पर्सन. सो डेड पर्सन्स मैसेज इज इंपॉर्टेंट. I had been part of Nelson's prayer that the British fleet might be distinguished by humanity in the victory which he expected. What was Nelson's dream? Nelson's prayer was not only for the victory of British fleet. In fact, he was hopeful of the victory, but he wanted that this victory should be recognized by humanity. That is, it should be very much beneficial to all the humanity. So option B, to serve humanity, is the right answer. आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट है और डायरेक्टली लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है. अभी जो हमने क्वेश्चन किया दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड नाउ वी विल डू वन इडियम. व्हाट डज द इडियम बी ऑल एंड ऑल मीन? द करेक्ट आंसर इज होल एंड सोल, सब कुछ. इफ समथिंग इज योर एवरीथिंग देन यू कैन use this phrase, this idiom.
Be all and end all, something considered to be of the utmost importance, utmost significance, something essential for you, very essential. For example, for someone, some person is everything. He thought that she was the be all and end all of his life. Question 69. Pick out the right option which expresses the meaning of the word jealous. Envious, option B. किसी से जलना, that is the meaning of jealous and envious both. Choose the right option which expresses the meaning of the word invincible. Invincible means unconquerable, जिसको जीता नहीं जा सकता. That person is called either invincible or unconquerable. Fill in the blank with a suitable preposition or verb. He dashed the bus when it came. The correct answer is he got on the bus. बस आई है, बस पर सवार हो रहे हैं वो at present, so got on आएगा. Got off आता अगर वो ऐसा कोई सिनेरियो हमें दिया जाता जब वो बस से उतर रहे होते. So when bus came, of course somebody will get into it. So got on here is the right option. अब हम दोबारा से एक पैसेज करेंगे. Read the following passage and answer the question that follows it. But the 10 poets represented in the following pages all share a technical master of English verse and a broad enough thematic concern to make them worthy of the attention of a wide audience. To which of the following categories does the book alluded to in the above statement belong? तो देखिए, जहाँ से पैसेज दिया गया ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट आपने पढ़ा है. हो सकता है कभी बाई चांस पढ़ा हो, बट इन 99% ऑफ द केसेस नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज देर आर सो मेनी बुक्स इन दी वर्ल्ड. तो उस पैसेज को देखने की और उस पैसेज को समझने की कोशिश करिए. ट्राई टू रीड इट ट्वाइस थ्राइस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है. अब देखिए, हमारे पैसेज में सबसे पहले बात हो रही है कुछ पोएट्स की, और नॉट अ सिंगल पोएट बट 10 पोएट्स. शायद कुछ ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको 10 पोएट्स ने मिलकर लिखा है. द 10 पोएट्स represented in the following pages all share a technical master of English verse and a broad enough thematic concern. So let us see the options now. Anthology of poetry, anthology of critical essays, anthology of English prosody, a treatise on poetry and its nature. It is for sure anthology of poetry. Anthology हम ऐसी किसी चीज़ को बोलते हैं, ऐसे किसी पब्लिकेशन को जो कि मिलकर बहुत सारे राइटर्स ने लिखी है. इवन आजकल एंथोलॉजी ऑफ मूवीज़ बहुत पॉपुलर हैं. 4 या 5 डायरेक्टर्स मिलकर, कभी आपने देखा होगा कि छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज का कॉम्बिनेशन हो जाता है, एंड दैट मूवी इज देन कॉल्ड एंथोलॉजी. सो ऑप्शन ए राइट आंसर. Again, we will have to read something. Read the lines that follow the answer the question based on them. Created half to rise and half to fall, great Lord of all things, yet a prey to all. Which of the following statement best articulates the human condition suggested in the above line? Half to rise, half to fall. Human beings के लिए ही यूज किया जा रहा है. ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल. ह्यूमन बींग्स जो हैं राइज भी होते हैं, फॉल भी होते हैं, सबके लॉर्ड हैं, सारे क्रीचर्स में सबसे बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी किसी का भी शिकार बन जाते हैं, और किसी का तो क्या, किसी दूसरे ह्यूमन का ही शिकार बन जाते हैं. तो लाइंस क्या है, पैराडॉक्सिकल हैं. ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, कि अपने आप में ही एंटी स्टेटमेंट है पूरे सेंटेंस में, लेकिन फिलोसॉफिकली बिल्कुल ठीक भी है. पैराडॉक्स क्या है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. डिटेल में कवर करिएगा सारे लिटरेरी डिवाइसेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पोम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. सेम क्वेश्चन. एंड दो अ सिंगल वर्ड scatters all doubts, I quake for wonder at your choice of me. Why and why? How would you like to characterize the speaker of the line? एक बार दोबारा पढ़ते हैं. And though a single word scatters all doubts, I quake for wonder at your choice of me. Why and why?
Option B here is the right answer. He was diffident regarding his selection as a lover by his lady love, but is now surprised at her choice of him. The poem seems to be doubtful of being chosen as a lover by his lady love, but that doubt vanishes from her reply, and now his mind is filled with surprise at his selection. तो एक ऐसा लवर है जो कि डाउट कर रहा है कि मेरे लव ने मुझे ही क्यों चूज किया, इतना कुछ है इस दुनिया में, तो आई वंडर व्हाई यू हैव चोजन मी, व्हाई एंड व्हाई. ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. एंटोनिम की बात हो रही है यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड की, ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस का एंटोनिम क्या है? ऑप्शन सी, ominous is the complete opposite of auspicious. Ominous means bad omen and auspicious, of course, good omen. Question 76. Which of the following word is the synonym of apathetic? Apathetic का मतलब है कोई इस तरीके का बिहेवियर कि आपको पता चल जाए सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है. He was apathetic towards me. He was hostile towards me. So lack of interest when someone shows, you can call the person to be apathetic or hostile. Which of the following sentences is not in passive voice? अब देखिए आपको एक्टिव पैसिव की भी बहुत अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एक्टिव पैसिव के लिए मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 वीडियोस आर देयर एंड ऑल ऑफ यू शुड वॉच इट. मुझसे आप लिंक ले लीजिएगा कमेंट्स में और बहुत ही डिटेल में इन वीडियोस को भी कवर करिए. अगर एक भी क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव का तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ना. एक क्वेश्चन के भी मार्क्स हमें क्यों लूज करने, राइट? सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. माय अंकल सीक्स ऑन अपॉइंटमेंट विद यू. बाकी सब में इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को यूज किया गया, दैट इज पैसिव वॉइस को यूज किया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस? तो एक्टिव पैसिव की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अब समझ आ गया हमें, अच्छे से कवर करिए. आई वॉन्ट टू परचेज अ प्लॉट हियर. शी नोज स्विमिंग वेरी वेल. यू कैनॉट कॉम्पीट इन दिस गेम दिस ईयर. She was awarded the British Council Scholarship in 1999. She was awarded by someone, that is implied here. So this option D is the right one. Question 79. Trace the following list, the play which doesn't belong to the category to which the rest do. Othello, King Lear, Hamlet, Tempest. 3 प्लेज हैं जो कि ट्रैजिक हैं और एक प्ले है जो कि बड़ा ही खुश सा प्ले है और इवन सारी यूनिटी भी उस प्ले में है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. दैट वन इज टेम्पेस्ट. Othello, King Lear, Hamlet, even Macbeth are 4 major tragedies by Shakespeare, whereas The Tempest is a comedy. Option D here is the right answer. Next question. Which of the following word means a cure for all ills? The correct answer is option C, panacea. Panacea is something that will cure all diseases or kind of solve all the problems and difficulties. A universal remedy you can say. हिंदी में जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि ये तो रामबाण है, that is panacea. क्वेश्चन 81 में हमें देखना है किस वर्ड की स्पेलिंग ठीक नहीं है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. करेक्ट स्पेलिंग इज CENTRE. What is the meaning of the phrase on the alert? The correct answer is option A, ready to act. The police is on the alert. The police is ready to act. This kind of sentence can be there. The synonym of the word timorous. Timorous means very timid, डरा हुआ. कोई डरा हुआ person है, you can call that person to be he is very timid or she is very timid or timorous. What is the synonym of elegant? Elegant, बड़ी ही सभ्यता से अगर कोई पेश आता है, you can call that person to be elegant or graceful. Direct indirect speech, एक्टिव पैसिव के साथ इसने भी बहुत ट्रबल दी स्कूल टाइम में, राइट? तो लेकिन अभी भी हमें इसको कवर करना पड़ेगा. Find out the correct indirect narration of the following direct speech. He said to me, what are you doing? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ही सेड टू मी. सेड का एक्सप्रेशन
हमारी स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क्ड आएगा। तो आस्क्ड तो सभी में ए बी सी इन सब ऑप्शन में आस्क्ड है। ही सेड टू मी व्हाट आई वॉज डूइंग। सेंटेंस अपने ही पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाट आई वॉज डूइंग, राइट? दैट विल बी द राइट ऑप्शन। Question 86. Find out the correct indirect narration of the following direct speech. He said, Alice, I'm undone. Option C here is the right answer. यहाँ पर हम expression देखते हैं, he exclaimed sadly. ये जो expression है ये sad expression है, that he was undone. अपने ही past में convert कर दिया जाता है. Option C here will be the right answer. लेकिन आपको बहुत डिटेल में रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। ओके, यहाँ पर हमें पंक्चुएट करना है सेंटेंस को। आज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम। आज ही वॉज फॉर्चुनेट रिजॉइस एट इट। आज ही वॉज वेलिएंट आई ऑनर हिम। बट आज ही वॉज एम्बिशियस आई स्ल्यू हिम। बहुत ही खूबसूरत लाइन्स है। पहली बात तो ये है, लेकिन हमें अभी पंक्चुएट करना है। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। एज सीजर लव्ड मी, उसके बाद कॉमा आएगा, आई वीप फॉर हिम, उसके बाद एक दूसरा फ्रेज शुरू हो रहा है उसी के पैरेलल, तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, अगेन कॉमा, एंड अगेन एक और फ्रेज शुरू होने से पहले सेमीकोलन। तो इसी तरीके से यहाँ पर पंक्चुएशन होगी एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस। What does the abbreviation IPC mean in the context of our constitution? सुना तो बहुत बार है, IPC सेक्शन दिस, IPC सेक्शन दैट। इसका पूरा फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड, IPC। Select the right meaning of the word biography from the following. Life history of a man written by someone else, life history of a man written by himself, life history of a man reflected in his writing, the life history of a man created in painting by someone else. This will be the right answer. Option A. अगर खुद ही लिखी है तभी वो बायोग्राफी है, अगर किसी और ने लिखी है तो ऑटोबायोग्राफी की कैटेगरी में आएगी, और लाइफ हिस्ट्री अगर रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी राइटिंग्स में तो वो मेमोयर कहलाएगा। ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन में चाहूंगी कि आप अपना एक्टिव पैसिव पूरा कवर करिए और आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या है। दे विल रीबिल्ड द एंटायर ब्लॉक। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से आप क्या सोचते हैं कि इसका राइट आंसर होना चाहिए, और अपने एक्टिव पैसिव की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सो दैट इज इट फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे और पूरे 120 क्वेश्चंस कवर करेंगे। दीज आर नॉट जस्ट दी 120 क्वेश्चंस बट अ कंप्लीट प्रैक्टिस पैकेज फॉर यू। और जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आई हैव बीन टेलिंग ओवर एंड अगेन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए। बहुत बार होता है कि मे बी वो क्वेश्चन हमें ना आए एग्जाम में, लेकिन कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो actually while doing 120 question, we are practicing almost the entire syllabus.